evening friends, myself Janendra Mato and you are watching my YouTube channel Science and Maths Classes by Jay Sir। और मैं इस वीडियो में आज साइंस में चैप्टर 1 का क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को बता रहा हूं। और आज मैं शुरू कर रहा हूं पेज नंबर 6 का, जो NCERT चैप्टर 1 का पेज नंबर 6 का क्वेश्चंस हैं जितने वे सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर डिस्कस करने जा रहा हूं। ओके, और आप सबको सबसे पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई एक नया वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 6 का, Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? और आप सभी जानते हैं कि मैग्नीशियम जो मेटल है वो बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। मैग्नीशियम इज a highly reactive metal. Okay, so when it comes in contact with other substances, it reacts that substances and makes some impurities. Okay, so it doesn't burn easily, so we have to clean magnesium ribbon before burning in air. Okay, or another reason for clean magnesium ribbon is that it remains contact in air if we clean magnesium ribbon before the burning. Okay, तो मेन इसका जो कारण है वो क्या है? A magnesium ribbon be cleaned before burning in air because a magnesium ribbon be cleaned before burning in air because magnesium is a highly reactive metal. Magnesium is a highly reactive metal. Okay, magnesium is a highly reactive metal and when it kept in open environment, when it kept in open environment, it comes in contact with other substances and make some impurities or collects some impurities in their surfaces, and that is why we have to clean magnesium. That is why we have to clean magnesium ribbon before
burning before burning in air. Okay, impurities or collect some impurities in their surfaces, and that is why we have to clean magnesium ribbon before burning in air. Okay, the surfaces, and that is why we have to clean magnesium ribbon before burning in air, and this is the main reason. Okay, and thus magnesium ribbon burns easily in air when we clean magnesium ribbon from a clean paper, so that it remains in contact with the air during burning. And this is the main reason. क्या बोले? A magnesium ribbon be cleaned before burning in air because magnesium is a highly reactive metal, and when it kept in open environment, it comes in contact with other substances and makes some impurities or collects some impurities in their surfaces, and that is why we have to clean magnesium ribbon before burning in air. Thus magnesium ribbon burns easily in air when we clean magnesium ribbon from a clean paper, so that it remains in contact with air during burning. यहाँ पे क्लीन पेपर की जगह हिंदी में यूज करते हैं एक रेगमाल. ठीक है, रेगमाल कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से अच्छी तरह रगड़कर साफ कर लिया जाता है, ताकि वो जो मैग्नीशियम रिबन है वो हवा के संपर्क में बना रहे और वो इजीली जलता रहे. ठीक है, तो यही है मेन कारण मैग्नीशियम रिबन को साफ करने का. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है राइट द बैलेंस इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस. हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द बैलेंस इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस. ये जो वर्ड इक्वेशंस हैं, वर्ड केमिकल रिएक्शंस, इनको बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है. ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है. तो फर्स्ट क्या करेंगे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन के लिए जो होता है फॉर्मूला वो लिखेंगे. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना होता है H2 प्लस क्लोरीन के लिए होता है आपका Cl2. ये दोनों कंबाइन करके आपका क्या बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज HCl होता है.
अब इसको बैलेंस कर देना है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, और इधर कितना हो गया, हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 2 मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हो गया। किसके लिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इट गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड दैट इज बेरियम के लिए बी, और क्लोराइड यहाँ पे चूंकि बेरियम का वैलेंसी 2 होता है इसलिए क्लोरीन इसमें हो जाएगा BaCl2। उसके बाद एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है और सल्फेट का 2। ठीक है, तो ये SO4 हो गया और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्रॉस मल्टीपल हो गया। ठीक है, ये एल्युमिनियम का वैलेंसी SO4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और सल्फेट का एल्युमिनियम के साथ, तब इसका फॉर्मूला हो गया Al2SO4 3। ओके, SO4 होल 3। उसके बाद बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा था BaSO4 हो गया। ठीक है, दोनों का वैलेंसी 2 2 हो गया, दोनों का कॉमन आउट हो गया 2। इस तरह से इसका जो फॉर्मूला आया BaSO4 बेरियम सल्फेट। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड, तो ये आपका हो जाएगा AlCl3, ये हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड। एंड नेक्स्ट थर्ड इक्वेशंस इज सोडियम प्लस वाटर। तो सोडियम का आपका फॉर्मूला, ये सोडियम मेटल है तो ये एटम के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, तो ये सोडियम Na हो गया। और वाटर के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है H2O, और दोनों मिल के क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH हो गया। और इसके बाद इधर निकल गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकल गया। अब इसको देखना कि ये बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, बैलेंस है कि नहीं, सोडियम के लिए NaH2O, यहाँ पे हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर कितना हो गया 3, ये बैलेंस नहीं है। तब क्या करेंगे, इधर से यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, इसके आगे 2 लगा दिए तो इधर हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा, इसके लिए इसके आगे 2 मल्टीप्लाई कर दिए, तब ये भी 4 हो गया। अब इधर ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। सोडियम इधर 2 है तो इधर 1 है, तो इधर भी 2 करना पड़ेगा। अब देखिए सोडियम इधर 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी 2 हो गया। इस तरह से ये भी क्या हो गया, आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशंस हो गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है उसको, ठीक है, उसको भी बताते हैं। और उसमें है कि क्या, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। वो वर्ड में आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको आपको क्या करना है, केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है उसको। ठीक है, तो उसको भी करते हैं, इससे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट। तो थर्ड क्वेश्चन है, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो पहला रिएक्शंस क्या है, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। तो solutions of barium chloride means आपका क्या है, बेरियम क्लोराइड का विलयन है, उसके बाद सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है, मतलब ये आपका सोडियम सल्फेट आपका जल में घुला हुआ है। टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, इनसोल्यूबल का मतलब यहाँ जो घुलनशील नहीं है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अवक्षेप बोल सकते हैं। ये क्या है, अवक्षेप का मतलब जो एक्स्ट्रा मटेरियल बच जाता है उसको हम लोग अवक्षेप बोलते हैं, दैट इज प्रिसिपिटेट। ठीक है, द रिएक्शन इन विच प्रिसिपिटेट फॉर्म्स इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, जिसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, जिसमें एक्स्ट्रा मटेरियल बच जाता है जो इनसोल्यूबल होता है, दैट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट। ओके, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब अनवांटेड या एक्स्ट्रा मटेरियल दैट इज नॉट दैट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। और ठीक है, ये क्या है, इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, ये विलयन में इनसोल्यूबल होगा, दैट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट। और यहाँ पे बेरियम सल्फेट एक अवक्षेप के रूप में है। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं रिएक्शंस, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 सॉल्यूशंस बोला जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्वस के फॉर्म में होगा।
एक्वस मतलब जल विलयन है, ठीक है। ये आपका स्टेट बता रहा है। जब भी स्टेट बताने के लिए बोला जाता है तो इस तरह से, अगर लिक्विड होगा तो LIQ, एक्वस होगा तो AQ, गैस होगा तो G यूज होता है, और सर मेटल होगा या सॉलिड होगा तो उसके लिए S यूज होता है। तो इस तरह से ये BaCl2 हो गया, बेरियम क्लोराइड। उसके बाद है सोडियम सल्फेट Na2SO4, और इसको बोला जा रहा है वाटर में है, तो ये भी आपका एक्वस हो गया। एक्वस, एक्वा, एक्वा, एक्वा ये रिलेटेड है जल से, ठीक है, वाटर से रिलेटेड है, इसलिए ये एक्यू हो जाता है एक्वस। एक्वस दैट इज जल विलयन, ठीक है। तो इस तरह से हो गया सोडियम सल्फेट। अब इधर क्या क्या बन रहा है, इधर बन रहा है आपका इनसोल्युबल बेरियम सल्फेट, तो ये हो जाएगा BaSO4, और ये इनसोल्युबल है, इसको प्रिसिपिटेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, BaSO4। और ये आपका क्या बन रहा है, सॉलिड, ये इनसोल्युबल है, अवक्षेप का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड आपका जो बन रहा है सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl आपका ये सोडियम क्लोराइड हो गया। अब इसको बैलेंस कर देना है, Na2SO4 यहाँ पे हो गया, तो सोडियम कितना हो गया, इधर 2 हो गया, इधर सल्फेट कितना है 1 है, तो इधर सोडियम 2, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। अब यहाँ Cl2, हाँ अब बैलेंस हो गया, क्लोरीन 2, उधर भी 2, सोडियम इधर 2, इधर भी 2, ठीक है, बेरियम 1, सल्फेट 1, ठीक है, बेरियम भी उधर 1 है। इस तरह से ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशंस हो गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए विद स्टेट ये आपका, अब यहाँ पे क्या बोला, सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो ये भी क्या हो गया, एक्वस के फॉर्म में होगा, जल विलयन में घुला हुआ है, तो ये आपका हो गया एक्वस, AQ दैट इज एक्वस, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया स्टेट सिंबल। उसके बाद है नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, ठीक है। और ये भी क्या है, इन वाटर, तो इसलिए क्या हो जाएगा AQ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इतना हो गया, प्लस उसके बाद है रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज HCl। ये दोनों, ये क्या कर रहा है, ये किसमें है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर, तो ये भी होके जाएगा एक्वस। तो क्या बना रहा है ये बना रहा है एसिड इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, तो ये प्रोड्यूस कर रहा है NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा। इन सॉल्यूशन एंड वाटर, तो वाटर वैसे भी क्या लिक्विड है, तो यहाँ पे वाटर H2O आपका लिक्विड हो गया, लिक्विड, लिक्विड, ठीक है। तो इतना हो गया। अब ये सारा सिंबल, अब इसको देखना कि ये बैलेंस है कि नहीं, इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन इधर 1 है, उधर भी 1 है, सोडियम इधर 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन इधर 1 है, इधर भी 1 है, मींस ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। तो यहाँ तक आपका पेज नंबर 6 का जितना भी क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपका आता है पेज नंबर 10 का NCERT क्वेश्चंस, ठीक है, पेज नंबर 10 चैप्टर 1 के NCERT क्वेश्चंस। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, वो सब्सटेंस जिसको हम सफाई मतलब क्या करते हैं, सफेदी, दीवारों की सफेदी के लिए जो यूज करते हैं वो क्या है, दीवारों की पुताई के लिए जो व्हाइट वॉशिंग के लिए जो यूज किया जाता है वो सब्सटेंस, उसको मान के चला है कि वो X है, और तब बताना है ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट द फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ तो दोस्तों ये पेज नंबर 10 का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, सफेदीकरण के लिए जो
मटेरियल यूज होता है घरों में, घरों की दीवारों को सफेदीकरण प्रदान करने के लिए जो भी सब्सटेंस, जो भी पदार्थ यूज किया जाता है, वो सब्सटेंस को मान लिया है एक्स है यहाँ पे, ठीक है। तब उस सब्सटेंस का नाम बताना है और इसका फॉर्मूला बताना है। तो जो भी ये सब्सटेंस यूज होता है वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं भखरा चूना, ठीक है, जिसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, चूना पत्थर। तो वही चूना पत्थर यूज होता है और उसका फॉर्मूला है सेलेक्ट लाइम, नो क्विक लाइम, नेम द सब्सटेंस। तो ये आपका हो गया क्विक लाइम, जिसको हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं, चूना पत्थर, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है फॉर्मूला CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और ये आपका क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है। Solution substance X is used for white washing, name the substance, चूना पत्थर। और इसके लिए जो रिएक्शंस है, राइट द रिएक्शंस ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन अबव विथ वाटर। तो इसके जो इसलिए जो रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तब यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है वो आपका क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बुझा हुआ चूना करते हैं। इसी का यूज हम लोग करते हैं सफेदीकरण में। तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल है ये आपका ये है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको चूना पत्थर बोलते हैं। इसको जब पानी के साथ मिलाते हैं तो ये आपका सब्सटेंस देता है वो आपका बुझा हुआ चूना। ये आपका क्विक लाइम हो गया, ये इसको क्विक लाइम बोलते हैं। और ये वाटर हो गया, ये इसको बोलते हैं स्लैग लाइम, बुझा हुआ चूना। ये आपका हो गया स्लैग लाइम, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और ये बैलेंस है कि नहीं, H2 हाइड्रोजन इधर 2 हो गया, इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर 2 उधर भी 2, कैल्शियम 1 इधर उधर भी 1। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। उसके बाद है व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम द गैस, नेम दिस गैस। तो 1.7 एक्टिविटी में जो दो कैथोड और एनोड लिए गए थे इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, और दो ट्यूब में एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड लिए गए थे। तो उसमें देखे गए कि उसमें जो गैस कलेक्ट हुए वो क्या हुए कि एक जो गैस है वो दूसरे के अपेक्षा दोगुना कलेक्ट हुआ। तो ये क्यों हुआ, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जब क्या उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया गया, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस उसमें हुआ और इसके कारण क्या हुआ, एक गैस दूसरे का दुगुना कलेक्ट हो गया दूसरे में, ठीक है। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो इसका आंसर करते हैं यहाँ पे। ड्यूरिंग आंसर, ये इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस of water, hydrogen and oxygen is get separated। दोनों क्या होते हैं, अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं दोनों टेस्ट ट्यूब में। गेट separated by the electricity, by the electricity water,
that is H2O, water H2O contains two parts, hydrogen and oxygen. Contains two parts, hydrogen and contains two parts of hydrogen and one part of oxygen. Since क्या होगा, हाइड्रोजन goes to one test tube, हाइड्रोजन goes to one test tube and oxygen goes to another test tube. That is why, and that is why क्या होगा, that is why the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7 double of the amount collected in the other. ठीक है, और इस तरह से ये जो एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस कलेक्ट होगा वो दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा होगा, मतलब दोगुना होगा, डबल होगा, और वो जो गैस का नाम होगा वो क्या होगा, वो गैस जो होगा वो 2 पार्ट्स हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं और 1 पार्ट ऑक्सीजन की, तो जो डबल होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा. ठीक है, एंड द सब्सटेंस इज हाइड्रोजन. द नेम दिस गैस एंड द नेम ऑफ gas is हाइड्रोजन. क्या, हाइड्रोजन. तो यहाँ तक आपका पेज नंबर 10 का और पेज नंबर 6 का सारे क्वेश्चन का आंसर हो गया. ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए. तो यहाँ तक पेज नंबर 10 हो गया. आप नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे, इसके आगे क्वेश्चन को डील करेंगे. तो यहाँ तक आपका सारा कंप्लीट हो गया. ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को अगर मेरा क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें